السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار و پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، مالک یوم الدین ہے، علیم بذات صدور ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ہے۔ اور جس اللہ کی ہم بندگی بجا لا رہے ہیں وہ سب سے نمایاں، سب سے بے مثال، سب سے باکمال، سب سے قوت اور طاقت والا، بہت ہی غنی، بڑا ہی شہنشاہ، بڑا ہی رحیم ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی صفت جس کے لیے ہمارے رکوع سجدے، جس کے لیے ہماری دعائیں قربانیاں، جس کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، خود اپنی تعریف، اپنی صفت بیان کرتے کہتا ہے کہ وہ اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رات دن کی ہماری عبادتیں ہیں، زبانی اور بدنی عبادتیں، اسی کی رضامندی کے لیے ہم جیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ درود نازل ہو سارے نبی اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی 30ویں آیت کی تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر دین صراط مستقیم پر، ملت اسلامیہ پر، دین حقہ پر ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، دوام کے ساتھ عمل کرتے ہیں،
ऐसा नहीं कि कभी कर दिए कभी छोड़ दिए, हमेशा दीन इस्लाम पर साबित कदम रहते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। मेरे नबी, इनको खूब सुना दो, ना कोई खौफ होगा इनको, ना कोई गम होगा, ना दुनिया में, ना खबर में, ना कयामत में। और इनको बशारत दो ऐसी जन्नत की जिस जन्नत के नीचे से नहरें बहती हैं, जिस जन्नत का इनसे वादा किया जाता है। ये आयत है उन लोगों के बारे में जो दीन इस्लाम पर साबित कदम रहते हैं। हम में से बाज ऐसे मुसलमान हैं जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ही अंधेरा के तहत रेडीमेड इस्लाम रमजान में घुस गया। रमजान खत्म होने के बाद वो ईमान और इस्लाम भी हमसे चला गया। अब वो इस्लाम दोबारा आता है जब रमजान का आसमान में चांद नजर आता है। इसे रेडीमेड मुसलमान कहते हैं। इसे 1 महीने का बनावटी मुसलमान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसे इस्लाम की भी जरूरत नहीं, ऐसे मुसलमान की भी जरूरत। आप लोग अपने ईमान को ऐसे बनाएं, अपने दिल में ईमान को ऐसे साबित कदम रहें, अपने दिल से इस्लाम पर ऐसे चलें कि दुनिया आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपसे खुश हो जाए। दोनों जहां की कामयाबी के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हमसे कब खुश होगा? जब हम दिल से इस्लाम पर अमल करेंगे तब खुश होगा। लोगों को दिखावे के लिए जो किया जाने वाला अमल है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसका बदला देगा और न आखिरत में उसका बदला देगा। रियाकारी से किया जाने वाले अमल का कोई बदला अल्लाह के पास नहीं। खुलूस, लिल्लाहियत, इखलास, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह ताला की पास इनाम पाने की तमन्ना, उसे राजी करने की जुस्तजू दिल में रखकर अगर अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हर छोटे से छोटे अमल को भी आपका कबूल करेगा। इखलास पैदा करें अपने अंदर, रियाकारी से अपने आप को बचाएं। 1 महीने के मुसलमान ना बने, साल के 11 महीने वैसे ही मुसलमान बने रहे। क्यों? इसलिए कि रमजान के महीने में जो तरावियों जैसी नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले हजरात, मस्जिदें भर जाती हैं, तरावियों का एहतमाम करते हैं, करना भी चाहिए। बड़ी मुकद्दस इबादत है ये, इंसान के पिछले गुनाह माफ करा देती है ये इबादत, ईमान ताजा करा देती है, तकवा बढ़ा देती है। लेकिन अफसोस, रमजान जैसे माह मुबारक में नफिल नमाज जैसी तरावियों की पाबंदी करने वाले रमजान गुजरने के बाद साल के 11 महीनों में फर्ज नमाजों में भी नजर नहीं आते। क्या अल्लाह ताला को तुम्हारी ये इबादत काफी है? क्या तुम्हारी ये नमाज अल्लाह के दरबार में काफी है? मेरे भाइयों, मुसलमान अपने आप को ऐसे बनाओ, मोमिन अपने आप को ऐसे बनाओ, डरो इस बात से कि हमारी किस हरकत से अल्लाह नाराज ना हो जाए, हमारी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे अल्लाह हम पर गजब ना नाजिल कर दे। हर किसी के दिलों से दुआएं लेने का सबब और जरिया बनिए, किसी के आंखों से आंसू निकलकर उनके दिल की बद्दुआ लेने का सबब हरगिज मत बनिए। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए फायदा मंद हो। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मोमिन वो है जिसकी जुबान और हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज हम ऐसे मुसलमान, ना हमारे अड़ोस पड़ोस हमारी शरारतों से महफूज, ना हमारे घर वाले हमारी हरकतों से पुरसुकून। बीवी पर जुल्म करने वाला, माँ बाप को जवाब देकर गालियां बकने वाला, बच्चों पर जुल्म करने वाला, जमात वालों के साथ बुरा सलूक रखने वाला, हुकूकुल्लाह में भी फेल, हुकूकुल इबाद में भी फेल। ये दुनिया में अल्लाह भेजा है अच्छा तोशा तैयार करने के लिए। 4 दिन की दुनिया है, 4 दिन की दुनिया है। देखते ही देखते कल तक हम बच्चे थे, आज हम जवान हो गए। कल तक हम जवान थे, आज बूढ़े हो गए। कल तक हम बूढ़े थे, आज बिस्तरे मर्ग पर मौत के अय्याम गिनते हुए बीमार पड़े हैं, सेहत के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टरों ने सुना दिया
इसकी बीमारी सेहत के करीब लेकर नहीं आएगी, मौत के करीब लेकर चली जाएगी। देखते ही देखते दुनिया निकल जाएगी। आपके शब और रोज, आपके सुबह और शाम, आपके दिन और रात ऐसे बीतना चाहिए जिससे कयामत के दिन अल्लाह ताला फख्र से ये कह सके, मेरे बंदे तेरे अमल से मैं खुश था, ये ले तेरा नाम अमाल, दाएं हाथ में ले, मेरे रहमो करम से, मेरे फजलो करम से जा जन्नत में, ऐसा कह सके हमारा रब। ऐसे हमारे अमाल होना चाहिए। क्या है हमारे अंदर? है हमारे अंदर ये जुस्तजू? है हमारे अंदर इतनी खुलूस, लिल्लाहियत, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल? रियाकारी में पड़े हैं हम लोग, एक दूसरे पर फख्र जताने में पड़े हैं हम लोग, एक दूसरे को हकीर जताने में पड़े हैं हम लोग। कुछ भी करेंगे सोशल मीडिया पे पहले डालेंगे। हज करने गए फोटो सेल्फी, उम्रा करने गए सेल्फी, नमाज पढ़ने के बाद बाहर हजरत नए कपड़ों में जुमा के दिन आए सेल्फी। अरे क्या करोगे जी फोटो उतर के? दुनिया वालों को बताना चाहता है कि मैं कितना आबिद हूं। एक ईद की नमाज को गए सेल्फी। अरे एक कुर्बानी की ईद अदा कर रहे हैं, बकरा है, दुम्बा है, गाय है, ऊंट है, ज़बा करने से पहले सेल्फी, ज़बा करते वक्त सेल्फी, ज़बा करने के बाद सेल्फी। अस्तगफिरुल्लाह। पूरी जिंदगी रियाकारी में मुब्तला है हमारी। ऐसे जिंदगी गुजारो कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना पसंद करता है, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनकी मुलाकात को अल्लाह ना पसंद करता है। अम्मा आयशा कहती हैं, सही बुखारी किताबुर रिकाक की हदीस। किताबुर रिकाक किसे कहते हैं? दिलों को नरम करने वाली अहादीस, दिलों को मोम करने वाली अहादीस। किताबुर रिकाक के अंदर ये हदीस है। अम्मा आयशा हदीस के रावी। अरे अल्लाह के नबी मुझे बताइए, अल्लाह ताला बंदों में कौन वो खुश नसीब है जिनसे अल्लाह मुलाकात पसंद करता है? बंदों में कौन वो बदनसीब है जिनकी मुलाकात को अल्लाह ना पसंद करता है? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों में दो किस्म के लोग होते हैं। मुझे बैठ को बयान करने जमता नहीं भाई, खड़ो बयान करना चाहता हूं। ये स्टेज हटा डालो जरा पीछे। हदीस सही बुखारी की पेश कर रहा था मैं आपके सामने। उस हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं, दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, दो किस्म के लोग हैं, एक जन्नती, एक जहन्नमी। एक वो जो अल्लाह को खुश करने वाले, दूसरे वो जो शैतान को खुश करने वाले। एक वो लोग हैं जो अत्तिवल्लाह व अत्ति रसूल पर अमल करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो औलिया शैतान हैं, शैतान को खुश करने वाले। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, अल्लाह ताला बस बंदों से मुलाकात करना पसंद करता है, बाज बंदों से मिलना पसंद नहीं करता। जिनसे मिलना अल्लाह पसंद करता है वो अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे, अल्लाह ताला के लिए जीने मरने वाले बंदे हैं, अल्लाह की रजा के लिए हाथ छपाकर सदका करने वाले बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी की खातिर तन मन धन सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो बंदे जो सिर्फ रमजान में नमाजें नहीं पढ़ते, साल के 12 महीने नमाजों की पाबंदी करते हैं। ये वो बंदे हैं जो भी अमल करे दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, नेक अमाल करने वाले, रोजे रखने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करने वाले, अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले, दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने वाले, दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने वाले, ऐसे बंदों की जब मौत का वक्त आता है, अल्लाह का फरिश्ता खुशखबरियां सुनाता है, ओ मरने वाले, तेरी जिंदगी से अल्लाह बड़ा खुश था, तू जैसे ही मरेगा अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए आला इल्लियीन में जगह बना दिया है,
जन्नत में तेरा मुकाम बना दिया है और तेरे इस्तिकबाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला खबर में जन्नत की खिड़की खोल दिया है। बड़ा खुश नसीब है तू, तेरे आमाल से वो रहमान बड़ा खुश था। कब खुश होगा? जब खुश करने वाले अल्लाह को काम करेंगे तब अल्लाह खुश होगा। अल्लाह को खुश करने के काम नहीं करे तो अल्लाह कहीं कुछ खुश होता हमारे से? जो भी करो अल्लाह को खुश करने करो, शैताना को खुश करने न को करो, दुनिया को खुश करने न को करो। जो भी करो, चाहे तुम्हारे पास जेब में 1 रुपया होगा, वो 1 रुपया हाथ छुपाकर किसी गरीब को दिया तो भी अल्लाह को खुश करने दो। तुम्हारे पास 4 निवाले खाना होगा, 2 निवाले खुद खाओ, 2 निवाले किसी गरीब को खिलाओ। वो जो खिला रही ना, अल्लाह को खुश करने करो। तुम्हारी जिंदगी से अल्लाह राजी रहना जी। अल्लाह के नबी कहते हैं वो बंदा खुश हो जाता है और ये कहता है, ऐ फरिश्तों मुझे मेरे अल्लाह से फौरन मुलाकात करा दो, मैं अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूं। आयशा, ये आमाल सालिहा करने वाला, दीन पर साबित कदम रहने वाला, हमेशा नेकियां करने वाला, सिर्फ रमजानी मुसलमान बनकर साल के 11 महीने मुनाफिक रहने वाला नहीं, साल के 12 महीने मोमिन का किरदार निभाने वाला, जबान से हमेशा सच बोलने वाला, जिंदगी में वादे निभाने वाला, अमानत को पूरा करने वाला, किसी को धोखा नहीं देने वाला, किसी की इज्जत नहीं उछालने वाला, हर किसी की मदद करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान से मिलना पसंद करता है क्योंकि ये बंदा भी अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है। वो कहता है फरिश्तों से, मेरे अल्लाह से मुझे मिला दो, मैं अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूं। ऐ आयशा, अल्लाह भी इससे मिलना पसंद करता है। ये पहले किस्म के लोग हैं, जन्नती लोग, आमाले सालिहा करने वाले लोग, दीन पर साबित कदम से रहने वाले लोग। इसके बरअक्स एक बुरे लोग हैं, दूसरे किस्म के लोग, जहन्नम में जाने वाले लोग, शैतान को खुश करने वाले लोग। कुछ भी करेंगे रियाकारी के लिए करेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब के वास्ते करेंगे, कुछ नेकी कर भी दिए तो बार बार जताने वाले, एहसान जताने वाले। अस्तगफिरुल्लाह। एक बार गरीब बच्ची की शादी में 10,000 की मदद कर दिया, बार बार फोन करके जताने वाला, भूल गया मैं तेरी शादी में मदद कराया था, भूल गया तुम्हारी अम्मा बीमार थी, ऑपरेशन के लिए पैसे दिया था, भूल गया तेरे स्कूल की फीस पे कराया था। अरे कराया तो कराया रंगा भाई, अल्लाह तुझे दिया, तू सामने वाले को दिया। अल्लाह अगर तुझे नहीं देता तू कहेगा देता सामने। अल्लाह ताला आपको देने के काबिल बनाया, आपने किसी और की मदद किया, मैं दिया मैं दिया मैं दिया। अरे कहां से लाया भाई तू? क्या मां के पेट से लाया? नहीं, अपनी खुद ही से तैयार कर लिया। अल्लाह ताला अता किया भाई आपको, अल्लाह अता किया। ये भूल जाता है इंसान, रियाकारी के लिए करने वाला, दिखावे के लिए करने वाला, एहसान जताने वाला। अल्लाह अकबर। सूरह बकरा 264 आयत नंबर, अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, कोई भी सदका अल्लाह के रास्ते में जब तुम करते हो, रियाकारी करके, एहसान जता के, उस नेकी को जाया ना करो, उस नेकी को बर्बाद ना करो। अरे अल्लाह करने का मौका दिया करते, आपको किसी की हेल्प करने का मौका दिया करते, अब वो देने के बाद रियाकारी कहीं कर रहे हैं, एहसान कहीं जता रही। अल्लाह के नबी कहते हैं, बंदों में वो बंदे जो जहन्नम में जाने वाले हैं, शैतान को खुश करने वाले, दुनिया के लहवो लही पर चलने वाले, अय्याशी फहाशी करने वाले, गुनाहों के रास्ते पर चलने वाले। फरिश्ता आता, रूह कब्ज करने से पहले चंद बातें उसे अल्लाह के हुक्म से बताता। ओ मरने वाले, तेरी रूह कब्ज करने से पहले मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे ये बातें सुनाने के लिए भेजा है। तू जैसे ही मरेगा, क्योंकि ये जितने भी हैदराबाद के अंबरपेट में रहने वाले मोहल्ले के तेरे लोग हैं, इन लोगों में तू 1 नंबर का घटिया इंसान था। तेरी जिंदगी से मेरा अल्लाह बड़ा नाराज था, तेरे करतूतों से मेरा अल्लाह बड़ा नाखुश था। तू जर्रा करता तो ज्यादा बोल लेता। तेरी जबान, तेरे हाथ, तेरे पैर से कोई मुसलमान, कोई पड़ोस, कोई तेरे मोहल्ले वाले महफूज नहीं थे। बहुत तूने कर लिया,
कर लिया, अब तैयार हो जा, अल्लाह ताला ये सुनाने के लिए भेजा है। अब चंद लम्हों में हल्लक में हाथ डालकर तेरी रूह निकालूंगा, तेरे बदन से रूह कब्ज करूंगा मेरे रब के हुक्म से। जैसे ही तू मरेगा, अल्लाह ताला खबर में तेरे लिए सांप बिच्छुओं को मुंतखब किया है तेरी मेहमान नवाजी के लिए। जहन्नम में जब कयामत के दिन फैसले होंगे, जहन्नम में तू जाकर जलेगा, तेरा बड़ा भयानक अंजाम होगा। ये खतरनाक बशारतें सुनाने के लिए, ये वईद सुनाने के लिए अल्लाह मुझे भेजा है। अभी तेरी रूह भी कब्ज करे, यानी मैं सुन ले। अब जैसे रूह कब्ज होगी, उसके बाद तेरे साथ ये तमाम मामलात होने वाले। ऐ बुरे इंसान, कितना बुरा था रे तू, कितना बद इंसान था रे तू जैसे ही मरेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरे साथ ये सब फैसले करके रखा है। अब ऐसा ऐसा होने वाला है तेरे करतूतों के मुताबिक। अब वो सुनते ही पेशाब पाखाना बिस्तर में निकल जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा मेरे रब से मुझे मत मिलाओ, मैं अल्लाह से कभी मिलना ही नहीं चाहता। अय आयशा, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलना नापसंद करते हैं, मेरा अल्लाह भी इनसे मिलना नापसंद करता है। ये बदकिस्म के लोग हैं, बद किरदार लोग हैं, दीन पर चलने वाले लोग नहीं हैं, ये दुनिया परस्त लोग हैं। अंबर पेट के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला हमारे जिस्म में सांस बाकी रखा है, जिस्म में जान बाकी रखा है, दिलों की धड़कनें जब तक धड़क रही हैं, हमारा हर उठना, हर बैठना, हर सोना, हर जागना, हमारी जिंदगी, हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारे दिन, हमारे रात, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते अल्लाह को राजी करने के लिए जीना चाहिए, अल्लाह की रजामंदी की खातिर जीना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हम इंसानों के साथ दो हालात आते हैं। हम इंसानों जिन्नातों के साथ, हम मर्दों औरतों के साथ, हम बूढ़े बच्चों के साथ दो कैफियतें होती हैं। नंबर एक, अच्छे हालात, वेरी वेरी गुड हालात, इतने जबरदस्त हालात कि खुशियों के झूले में अल्लाह आपको झुला रहा है, समझो। मस्त बिरयानियां खा रहे हैं आप, बेहतरीन गाड़ी में घूम रहे हैं आप, बेहतरीन बंगलों में रह रहे हैं आप, अच्छे अच्छे नेमतें खा रहे हैं आप, अच्छे अच्छे खानदान में बड़ी शोहरत है आपकी, जमात में बड़ी इज्जत है आपकी, महल्ले में बड़ा मुकाम है आपका, जो भी कमाएंगे ढेर सारी बरकतें मिलेंगी आपको। इसे कहते हैं जिंदगी की तरक्कियां, इसे कहते हैं खुशियों के अय्याम, इसे कहते हैं तरक्की के दिन। जिंदगी में एक दूसरे अय्याम भी आते हैं इंसानों जिन्नातों के साथ, वो क्या है? तरक्की के अलावा तनज़्ज़ुली के दिन, जिल्लत के अय्याम, बीमारी के अय्याम, इंसान के लिए दुख और तकलीफों के अय्याम। कुछ भी कमाएगा, पैसा हाथ को नहीं मिलेगा, ना घर में उसकी इज्जत है, ना माशरे में उसकी इज्जत है, ना माहौल में उसकी इज्जत है। जहां भी वो जाएगा, जो भी काम करेगा, हर कोई उसे थूकेगा, अरे क्या नालायक भाई तू, कहीं को ऐसा कर रहा भाई, एक नंबर का बदकार इंसान है ना भाई तू, पहले घर छोड़ को जा भाई तू, हमारे महल्ले से निकल भाई तू, हमारी मस्जिद को आना भाई तू। अस्तगफिरुल्लाह। उसके लिए सारी जमीन तंग हो चुकी है, उसकी जिंदगी बेबरकतागी की चल रही है, जिल्लत की जिंदगी चल रही है, हर कोई थूक रहा है, हर कोई उसे धक्के मार रहा है। इसे कहते हैं जिंदगी के सबसे बदतरीन अय्याम। जिंदगी के या तो बेहतरीन अय्याम, जिंदगी के या तो बदतरीन अय्याम। आपको मालूम, हम इंसानों जिन्नातों के साथ, खासकर हम मोमिनों के साथ बेहतरीन अय्याम कब आते हैं, बदतरीन अय्याम कब आते हैं? आइए हम हदीस पढ़कर देखते हैं। सही बुखारी की हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह की नफरत के मामले में एक बेहतरीन रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है। किताबुल ईमान की रिवायत है, ये अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं। वो कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जमीन में जीने वाले लोगों में, जमीन में जिंदगी गुजारने वाले लोगों में किसी के अमल से अल्लाह खुश हो जाता। कोई इंसान अल्लाह को खुश करने के लिए रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लोगों से छुप छुपा कर इनफिरादियत में
किसी की मदद या किसी की हेल्प या किसी के लिए खैर खाही या किसी के लिए अनाज पानी, कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी अदा पर अल्लाह फिदा हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, कोई इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए तन्हाई में कुछ ऐसा काम करता है जिस काम से अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह ताला अपने आजू बाजू के फरिश्तों में फख्र से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुम्हें मालूम है हैदराबाद के अंबरपेट में रहने वाले फला बंदे बंदी के बारे में? नहीं अल्लाह, तुझे सब मालूम है, तू जो बताएगा वो हमको मालूम होगा। ऐ मेरे फरिश्तों, वो हैदराबाद का मेरा बंदा, वो मेरी बंदी, उसने मुझे खुश करने के लिए ये नेकी का काम किया, जिस नेक अमल को मैं इतना पसंद कर लिया, मैं उस इंसान से मोहब्बत करने लग गया हूं। मेरे फरिश्तों, मैं हुक्म देता हूं तुम भी उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। सातों आसमान के फरिश्तों के दिलों में इल्का किया जाता है, सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। दुनिया वालों को बताया जाता है, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे दरमियान उठने बैठने वाला वो बंदा, वो बंदी जिसके अमल से अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा है, सात आसमान के फरिश्ते मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह तुमसे कहता है तुम भी उससे मोहब्बत करो। हमारी रूहों से अल्लाह के फरिश्ते मुखातब होकर हमारे दिलों में उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत, उसकी कदर, उसकी बढ़ोतरी अल्लाह ताला गैब से भर देता है। फिर क्या होता, उस इंसान को जो भी देखेगा बड़ी इज्जत और इकराम से पेश आएगा। वो जो भी काम करेगा खूब खैर और बरकत ही बरकत पाएगा। वो जहां भी उठे बैठेगा सारे लोग उसकी आओ भगत करेंगे, बड़ी इज्जत और तकरीम करेंगे। ये जिंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम होते हैं, तरक्की के दिन होते हैं, खुशियों के सेहत और मंदी के दिन होते हैं। ऐसे अय्याम में इंसान को तकब्बुरी में नहीं आना चाहिए। ये देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रही, ये देखो मुझे कितना बड़ा ओहदा मिल गया, ये देखो मेरे पास कितनी बड़ी दौलत आ गई। आज ये जो शोहरत है, ये जो इज्जत है, ये जो इनाम है, ये जो नेमतें, ये सब अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह के इनाम से तुझे मिला है। ऐसे खुशियों के अय्याम में इंसान को तकब्बुरी इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐ मेरे अल्लाह, शायद तू मुझसे मोहब्बत कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे बस्ती वाले मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। क्या अल्लाह, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह, सारी दुनिया में मेरी आओ भगत हो रही है। अल्लाह, हर जगह मेरे लिए नेमत, बरकत, ऐ अल्लाह, हर जगह मेरे लिए तरक्की, ये सब तेरे फजल से मिल रहा। अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस बात पर मैं तेरा शुक्रिया अदा, ऐसे आलम में वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। अब इसके बरक्स इंसान किसी को ब्लैकमेल करते रहता, किसी की तस्वीर ले लिया, अब ब्लैकमेल शुरू, तुम मेरे साथ जिना करो वरना सोशल मीडिया पे ये तस्वीर डाल दूंगा। किसी इंसान के मजबूरी का गलत फायदा उठाता रहता है, किसी को हिसाब किताब नहीं आता, सूद के चक्कर में बता बता कर उससे पैसे ऐंठता रहता है। किसी यतीम को सताकर, किसी बेवाओं को, किसी मजबूरों को, किसी मिस्किनों को जुल्म करके उनकी आंखों से आंसू निकालने का सबब बनता रहता है। गर्ज, चाहे इंसानों पर जुल्म करे, चाहे जानवरों पर जुल्म करे, उसकी कोई अदा ऐसी होती है जिससे वो अल्लाह की निगाहों में गिर जाता है। अल्लाह ताला उससे नफरत करना शुरू करता है। अल्लाह अपने फरिश्तों में कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुम्हें मालूम है मेरा वो बंदा? नहीं अल्लाह, हमको नहीं मालूम। वो एक नंबर का घटिया है, वो एक नंबर का बदकार है, वो एक नंबर का बड़ा सियाकार आदमी है। उसके एक करतूत से मैं नफरत करने लग गया हूं उससे। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम भी उससे नफरत करो। सात आसमान के फरिश्ते, दुनिया वाले उससे नफरत करना शुरू कर देते। अल्लाह ताला गैब से सारे महल्ले बस्ती वालों के दिलों में उसके लिए नफरत अल्लाह पैदा कर देता है। वो जहां भी जाएगा लोग नफरत की निगाह से देखेंगे। वो जो भी काम करेगा उसके लिए तरक्की नहीं मिलेगी, उसके लिए बरकत नहीं मिलेगी। हर कोई उसे थूकेगा, हर कोई उसे धुतकारेगा, हर कोई नफरत की निगाह से बात करेगा। उसके लिए जमीन तंग हो जाती,
وہ अपने आप को जीना पसंद नहीं करता, काश के मैं मर गया होता, मैं खुदकुशी कर ले मर जाऊं क्या भाई, सारे लोग मुझे थू थू कर रही। अरे उसकी जिंदगी तंग दामन की शिकार बन जाती। मेरे भाइयों, जिंदगी के तरक्की के दिन, जिंदगी के तनज़्ज़ुली के दिन, जिंदगी के अमन सुकून के दिन, जिंदगी के तंग दामनी और जिल्लत के दिन, अगर जिल्लत के दिन चल रहे हैं, तनज़्ज़ुली के दिन चल रहे हैं, हर कोई तुमसे नफरत कर रहा है, हर जमीन तुम्हारे लिए तंग कर दी गई है, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे आलम में क्या करना, सबसे पहले अपने आमाल का जायजा लेना। मैं ऐसा क्या करया, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से मैं अल्लाह की निगाह में गिर गया हूं, जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ताला की नफरत की बिना सारी दुनिया मेरे से नफरत कर रही। ऐसे आलम में तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करना। ऐ अल्लाह, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगा जिसकी वजह से तू मुझसे नाराज है, सारी दुनिया मुझसे नाराज है। ऐ अल्लाह, मैं अपने किए अमाल पर पछतावा करके माफी मांगता हूं। तौबा इस्तिग़फ़ार करना। दीन पर साबित कदम रहना सीखो मेरे भाइयों। कभी रियाकारी के कोई काम मत करो, छोटे काम भी करो, रियाकारी के लिए मत करो। मस्जिद के लिए कूलर आप दिला दिए, मस्जिद के लिए आपने कोई फ्रिज, एक पानी, ठंडे पानी पीने का कोई आपने कूलर बिठा दिया, या आपने कोई फैन बिठा दिया, एसी बिठा दिया। आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, मैं करया, मैं दिया, मैं दिलाया, मैं करया, ये मस्जिद मैं बनाया, ये मदरसा मैं कायम करे। अरे बोलने की जरूरत नहीं भाई, अल्लाह को मालूम तुम्हें क्या करे क्या नहीं करेगा, अल्लाह उसका हिसाब बराबर देते रहे। आप कहीं को बार बार गिना गिना के पूरा हिसाब सत्यानाश कर ले रही, नेकियों को बर्बाद कर ले रही। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बनी इस्राइल के 3 मासूम बच्चे मां के गोद में बात किए, ईसा अलैहिस्सलाम और जुरैज बनी इस्राइल का एक आबिद, उसके पाक दामनी की गवाही देने वाला बच्चा, और तीसरा वो बच्चा जो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया। एक औरत अपने गोद में एक मासूम बच्चे को दूध पिलाते हुए एक रास्ते से जा रही है। अचानक उसके सामने से एक घोड़सवार घोड़ा लेकर धड़ाम से निकलता है। उसके पास कमान है, तीर है, तलवार है, ढाल है, और वो एक फौजी है, वो एक मुजाहिद है, इस्लाम के लिए लड़ने वाला मुजाहिद है। वो धड़ाम से जा रहा है। उसे देखकर ये दूध पिलाते जाने वाली मां अल्लाह से दुआ करती है, ऐ अल्लाह ताला, जिस तरह ये नौजवान इस्लाम के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए अपनी तलवार बुलंद करने वाला, ऐ अल्लाह इस्लाम के लिए गर्दन कटाने वाला ये मुजाहिद जैसे इस्लाम के लिए जंग लड़ने वाला है, मेरे बेटे को बड़ा होने के बाद ऐसा मुजाहिद बना, इस्लाम के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए गर्दन कटाने वाला, अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना। दूध पिला रही बच्चे, फ्यूचर के लिए दुआ कर रही, मेरे बच्चे को बड़ा बनाया तो ऐसा बना, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला ऐसा बना। वो बच्चा जो अपनी मां के सीने से दूध पी रहा था, मां के दुआ सुनता है, सीने से जुदा होता है और अल्लाह से यह कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मुझे बड़ा होने के बाद तू बनाना चाहता है तो जैसा भी बना, लेकिन इस घोड़सवार मुजाहिद जैसा मुझे हरगिज मत बना। ये बोलता है, फिर वो दूध पीना शुरू करता है। मां हैरान, अरे मेरे बच्चे क्या हुआ जी, मेरा बच्चा ऐसा कहीं बोल रहा। और थोड़ा आगे जाती है, एक बस्ती से गुजरती है। उस बस्ती में सारे लोग एक औरत को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। क्या बोल बोल के मार रहे हैं? जानिया, फाहिशा, बदकारा, गंदी औरत, जिना करने वाली, कौम की नाक कटाने वाली, इज्जतें बर्बाद करने वाली, ऐसी वैसी मार रहे सब लोग मिलकर उसे। ये औरत दूध पिलाते जाने वाली देखी, कितनी घटिया औरत भाई, कितनी जलील औरत भाई। अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बड़ा बनाने के बाद कुछ बनाना चाहता है
تو جیسا بھی بنا اس عورت کے بیڈ کیریکٹر کے جیسا میرے بچے کا کیریکٹر مت بنا. زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں، وہ لڑکا جو اپنے ماں کے سینے سے دودھ پی رہا تھا، ماں کی دعا سنتا ہے، دودھ پینا چھوڑتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، اگر میں بڑا ہونے کے بعد مجھے بنانا چاہتا ہے، اے اللہ اس عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا دے، اس عورت کے اخلاق جیسے میرے اخلاق بنا دے. اور یہ بولتا ہے، پھر دودھ پینا شروع کرتا. اب وہ ماں پوچھتی ہے بچے کو، میرے بچے ایسا تو کیوں بول رہا، ایسا تو آخر کیوں بول رہا؟ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ میرے بچے کو دین کے لیے لڑنے والا مجاہد بنا، دین کے لیے گردن کٹانے والا ہے اللہ مجاہد غازی بنا. تو کہتا ہے ویسا مت بنا. میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے بچے کو زانیہ عورت جیسے کیریکٹر مت بنا. تو کہتا ہے ویسا ہی بنا. میرے بچے آخر تو ایسا کیوں بول رہا؟ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات، دنیا کا آج تک قیامت کی صبح تک نہ کوئی ایسا جادو پیدا ہوا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی جادو ایسا پیدا ہوگا جو دودھ پیتے بچے کو بولنے جیسا جادو کر کے دکھا دے. نہ ہوا نہ ہوگا. یہ جو بھی بات کرے یہ صرف اللہ کی قدرت سے بات کرنے والے بچے، اللہ کے کرشموں میں سے کرشمہ یہ دودھ پیتے بچوں کا بات کرنا. وہ بچہ کہتا ہے، اے میری ماں سن لے، جب ہم پہلے مرتبہ اس نوجوان کے سامنے سے جا رہے تھے جس کو دیکھ کر تو نے اللہ سے دعا کیا میرے بچے کو ایسا مجاہد بنا، اللہ ماں تو اس مجاہد کے ظاہری روپ کو دیکھ کر تو نے دعا کیا، یقیناً وہ اسلام کے لیے لڑنے والا، یقیناً وہ جنگ کرنے والا، یقیناً وہ تلوار بلند کرنے والا. لیکن میری اماں اللہ تعالی مجھے اس کا باطن بتا دیا. تو نے اس کا ظاہر دیکھا، اللہ مجھے اس کا باطن بتا دیا. اس کا باطن کیا؟ انہیں لوگوں کو دکھانے کے واسطے لڑنے والا، ریاکاری کرنے لڑنے والا، لڑنے کے بعد لوگوں کو پوچھنے والا میں کیسا لڑا، میں کیسا کرتب دکھایا. اماں ایک نمبر کا ریاکار، ایک نمبر کا شہرت جتانے والا، جب اللہ عز و جل کے دربار میں قیامت کے دن بندوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اللہ تعالی اس ریاکار کو اٹھا کر جہنم میں پٹکیں گا. جب میرے اللہ نے اس کے عاقبت کے بارے میں بتا دیا، اس کے اندرونی باطن بتا دیا، مجھے جب اللہ نے یہ کہا، اے معصوم بچے، وہ مجاہد جس کے واسطے تیری اماں دعا کر رہی وہ تو جہنمی ہے، وہ ایک نمبر کا ریاکار ہے. جب میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا تو میں فوراً اللہ سے یہ دعا کیا، اے میرے اللہ مجھے بڑا کرنے کے بعد تو جیسا بھی بنا اس ریاکار جہنمی جیسا میرا کیریکٹر مت بنا. اماں میں دعا کریا. اب ہم اس بستی کے پاس سے جا رہے تھے، عورت کو بستی والے یہ بول بول کر مار رہے، زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، ایسی ویسی وغیرہ وغیرہ. اماں اس عورت کے زبان سے نکلنے والے کلمات کو کیا تو نے نہیں سنا؟ وہ عورت مار کھاتے جا رہی تھی اور زبان سے یہ کلمات ادا کرتے جا رہی تھی. وہ کلمات کیا ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اماں بستی والے بول رہے تھے یہ زانیہ، یہ فاحشہ، انہیں بدکارہ، انہیں گندی، انہیں ایسی، انہیں ویسی. میرے اللہ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا وہ ایک نمبر کی پاک دامن، نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، اللہ والی بندی ہے وہ. اور تو نے یہ سمجھ لیا کہ اس گھٹیا عورت کے جیسا میرا بچہ نہ بنے. اے میری اماں، میرے اللہ نے بتایا جب قیامت کا دن ہوگا، بندوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس نیک متقی پرہیزگار عورت کو اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کرے گا. جب میرے اللہ نے اس عورت کا عاقبت مجھے بتا دیا یہ جنت میں جائے گی، میں فوراً اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر مجھ معصوم کو تو بڑا کر کے کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، اللہ اس جنتی عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا.
یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس سے ہم نے عبرت کیا ملتی؟ عبرت یہ ملتی کچھ بھی کرے دنیا والوں کو دکھانے نہیں کرنا, دنیا والوں کو ریاکاری کرنا نہیں کرنا. رمضان کا مہینہ آیا, بورڈ میں نام ڈالتی فلاں حضرت کی طرف سے روزداروں کو افطاری, فلاں کی طرف سے افطاری. آج کس کی بھائی ہے؟ فلاں کی افطاری. آئے فلاں کا بکرا, ان کا 30 کلو کا بکرا, ان کا 50 کلو کا بکرا, انہوں بکرا دے رہی, انہوں اونٹ دے رہی. استغفر اللہ. سب ریاکاری کا عمل. ریاکاری کے لیے کیا جانے والا تمام اعمال دنیا ہی میں رہ جائے گا. قیامت کے دن پھوٹی کوڑی کے برابر اللہ کوئی نیکی نہیں دے گا. 3 قسم کے لوگوں سے اللہ جہنم کی افتتاح کریں گا. ریاکار, عالم, مالدار, نوجوان. عالم جسے علم دیا, نوجوان جسے جوانی دیا, گردن کٹا دیا, مالدار جو دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تینوں سے پوچھے گا دولت کیا کرے ابا, جوانی کیا کرے ابا, علم کیا کرے ابا. اللہ گلے پھاڑے پھاڑے بیان نہ کرے. عالم بولیں گا اللہ تیری دولت دائیں بائیں آگے پیچھے مدرسہ مسجدہ بیوہ یتیم سب کو دیا, تو جوانی کیا کرے ابا. اسلام کے لیے لڑتے لڑتے گردن کٹا گیا. اللہ تینوں کی باتوں کی تصدیق کرے گا. بے شک تو نے بیان کیا, بے شک تو گردن کٹایا, بے شک تو مسجدہ مدرسے بنایا, لیکن تم تینوں کی نیت صرف ریاکاری تھی, دکھاوا تھا, شہرت تھی کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہے, لوگ مجھے بڑا سخی کہے, لوگ میرے جہاد میرے گردن کٹانے شہید کی تعریف کرے. جو تم نہ ہونا تھا وہ دنیا میں میں دے ڈالا, اب آخرت میں کیا بھی نہیں تمہارے لیے, جاؤ جہنم. منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ پٹکیں گا جہنم میں. اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. آج ہمیں کہتے 5 فٹ کے, 6 فٹ کے, 7 فٹ کے, ارے بونے جی ہمیں, بونے کا تو گٹے گٹے آدمیوں کو بولتے ہیں, بونے ہمیں یہ جو 2023 1444ویں ہجری نبی کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 1444ویں ہجری کا سال 2023 کا یہ زمانہ ہمیں دیکھ رہی. اس زمانے میں سارے آدمی ہم نہ کیسا نظر آ رہی, 5 فٹ کے, 6 فٹ کے, 7 انسان ایتے چھرتی سمجھ لیا ہمیں بہت چھوٹے. آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے, آدم علیہ السلام کی ہائٹ 60 ہاتھ لمبے. یہ لائٹ کا کھمبے کے اوپر 3 کھمبے کھڑا کرے کتنا لمبا ہوتا, آدم علیہ السلام اتنے لمبے. 1000 سال عمر. داؤد علیہ السلام کے لیے 60 یا 40 سال نکال کو دے ڈالے. جنت میں ہماری ہائٹ بہت لمبی رہیں گی, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ 5 فٹ کے, 6 فٹ کے, 7 فٹ کے اتنا کرتی نا جی ہمیں میچ کرنے کا ضرورت. جم میں جا کو کیا ہونے ایکسرسائز کر لیتا, کٹسا نکال لے, میچ کا تکڑ لے پھرتا. استغفر اللہ, تکبری آ جاتی اس کے اندر. میچ بڑا باڈی بلڈر کا تکڑ لے پھرتا. اللہ کیا بولتا معلوم, قرآن مجید پڑھو, اما پارا پڑھو, سورہ فجر پڑھو. اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اے دنیا والو, کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا, قوم عاد کے ساتھ کیا کیا, قوم سمود کے ساتھ کیا کیا. ارے کھمبے کھمبے جیسے لمبے لمبے, موٹے موٹے, ہٹے کٹے, بڑے بڑے تگڑے. اللہ بولتا لم یخلق مثلها فی البلاد, ان کے جیسے ہٹے کٹے ہیکل نما طاقتور ہم نے دنیا میں کسی اور کو پیدا نہیں کیا. ان کے جیسے ویسوں کو 7 دن 8 راتیں, 7 دن 8 راتیں طوفان اللہ نکال کر آسمان سے چیخ نازل کر کے زمینوں کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ زمین بوس کر دیا, زمین میں دھسا دیا. اللہ بولتا کیا تم نے نہیں دیکھا ہیکل نما لمبے ہٹے کٹے بڑے بڑے قداور طاقتور آدیوں سمیدیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ارے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں جی تمہاری. اتنے ہو کو کر لیتے اللہ کے سامنے, اتنے ہو کے 2 انجیکشن مار لے کو, 4 کیپسول کھا لے کو, باڈی بلڈر کے وہ بڑے بڑے کوسے کی پاؤڈر پی لے کو, دودھ کا ذرا کٹسا کر لے, نہیں چلے گا تکڑے پھرتا. ارے
तेरी जवानी पूरी निकल जाती भाई। अल्लाह के सामने तकब्बुरी नहीं चलती मेरे भाई। अल्लाह के नबी कहते हैं खबर में एक मुतकब्बिर को जब सुलाया जाएगा, अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला, कुफ्र इख्तियार करने वाला, खबर उसे ऐसे दबाएगी, ऐसे दबाएगी, मोटे से मोटा इंसान बाल से बारीक हो जाएगा जब खबर उसे दबाएगी। अल्लाह अकबर। तुम्हारी ताकत की क्या हैसियत जी? अल्लाह जरा जवानी दिया कर तो छोटा को जुल्म करती क्या? अल्लाह तुमने ताकत दिया, मुच्छे रखने वाले मर्दबा ने बनाया कर तो बैकां को पकड़ने को, जोरुआ को मार मार को जुल्म करती क्या? अल्लाह जरी दौलत दिया कर तो अपने से कमजोर हकीरों फकीरों को हकीर निगाह से देख कर धुतकारती क्या? याद रखो, ये जवानी भी तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहती, ये दौलत हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहती। आज जिस ओहदे पर बैठकर तुम मजलूमों पे, मासूमों पे जुल्म कर रहे हो, अल्लाह की कसम यह ओहदा भी तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहता। जिस ओहदे पर इंसान तकब्बुर करता, जिस दौलत पर इंसान इतना अकड़ता, जिस जवानी को लेकर मजलूमों पे जुल्म करता, ये जवानी, ये ओहदा, ये दौलत, ये तीनों चीज उसके पास नहीं रहती, बहुत जल्दी निकल जाती। और खासकर हमारे नौजवानों को बोलना चाहता हूं, जितना हो सके गरीबों की मदद करने की कोशिश करो, बेवाओं यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, उनके दिल की दुआएं लेने की कोशिश करो। अकड़ो मत, तकब्बुर मत करो। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला कहता है अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन ज़ुहज़िअनी उदखिलन नार। तकब्बुर मेरी चादर, अजमत मेरी इजार। जो इंसान मेरी इन दो चादरों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, उठा को जहन्नम में पटक, तू बोलता अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल, तू बोलता अल्लाह ताला। तकब्बुर नहीं करना। आज कितना भी अकड़े नौजवान, कितना बड़ा उन्हें बॉडी बिल्डर, उन्हें क्या कि जीत को आया करते भाई, पूरे हाल तेलंगाना में नंबर 1 मारा करते, वैसे कट सांगते, वैसे बाड़ी का थे, उसे देखे तो लोग डरती गए थे। घर के पूरे गली का मियाँ भाई कहते, उन्हें बड़ा हजरत कहते, उन्हें बहुत ही उसे क्या कि अलग नाम से बुलाते कहते, उसके तंटे कौन भी नहीं जान। तो कितना बड़ा रहा तो भी दुनिया वाले को रहंगा भाई, अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं तेरी। तेरी जवानी, तेरा कन्ना, तेरा तकब्बुर, अल्लाह ताला बड़े से बड़ा हट्टा कट्टा इंसान रंदे, अल्लाह ताला उसे मौशाना लगा डालता। कहते मौशाना, मौशाना का तो हमारे बल्लारी में जुलाब कहती है उसे। आप लोग दस्त लगना बोलते रहेंगे क्लीन उर्दू में, दस्त लगना, दस्त लगती, मस्तू से दस्त लगती। 4 जुलाबा लगते ही बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर, बड़े से बड़ा कपसा निकाल को यूं बॉडी दिखाने वाला, 4 जुलाबा लगते ही ढिल्ला कपड़ा सोए सर का नीचे सो जा छोड़ता, हाथा भी उठाने आता नहीं, पवा भी हलाने आता नहीं। क्या भाई क्या हुआ? सुबह से जुलाबा कर ले, हालत ढीली हो गई, हजरत को ग्लूकोज चढ़ाना, बगैर ग्लूकोज चढ़ाए उठ को बैठ सकता नहीं, चिकनगुनिया है सर का बीमार पड़कर लंबा लेट गया। अरे तेरी जवानी, तेरे कटसा, तेरा अकड़ना, 4 जुलाबा से अल्लाह ढीला कर डालता भाई। कहीं कितना करता, ओनली 4 जुलाबा, जैसे ही लगे पूरा ढीला। जब तक ग्लूकोज के 4 बाटलियां नहीं चढ़ाते उठको नहीं बढ़ता हजरत। फिर कटसा काम भी जाते नहीं, वो बॉडी के बड़े बड़े मोटे मोटे कटसा का वांच रहती, लेकिन हालत पूरी ढीली हो गई। अल्लाह बताना चाहता, अल्लाह अगर चाहे तो तुझे पल भर में तेरी जवानी को कायम रख सकता, पल भर में तुझे कोमा में डाल को जिंदगी भर के लिए जिंदा लाश बना को बिस्तर पर सुला सकता। अल्लाह के सामने अकड़ना को ये बताने के वास्ते अल्लाह बीमारी देता। मेरे भाइयों, कभी भी अल्लाह के सामने तकब्बुर इख्तियार नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी इंसान को दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाना। अगर आपसे जाने अनजाने में तकलीफ हो गई, जाको माफी मांग लेना। जब अल्लाह ताला हमने जहन्नम में डालेंगा, हमें क्या समझ रही, ये 5 फीट, ये 6 फीट के इंसान, ये तेज हमें जहन्नम में रहती नहीं। अल्लाह के नबी कहते जहन्नम में एक इंसान को इतना बड़ा किया जाएगा, इतना बड़ा किया जाएगा, अगर उसके कांधे पर घोड़े पर बैठकर कोई घोड़सवार किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर कांधे के किनारे घोड़ा दौड़ाना शुरू करे, कांधे के किनारे से जहन्नमी इंसान के कांधे के किनारे से कान की नोलकी के नीचे आने में 300 साल लग जाएंगे।
300 साल की मसाफत कांधे के किनारे से कान की लोलकी के नीचे आने में कितना है? आज हमें हाथ रखे तो आधे फीट की जगह है, हाथ रखे तो एक अंगूठा एक मुट्ठी आधे फीट की जगह है, हमारा कांधा आधे फीट की जगह। जब अल्लाह ताला जहन्नम में हम ना डालेंगा, घोड़ा नॉन स्टॉप तेज दौड़ा है, 300 साल लगेंगे कांधे के किनारे से कान के नीचे आने में। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तुम्हारे टखने की हड्डी, ये टखने की हड्डी से गुड़गा, ये गुड़गे से रान, ये रान से कमर, हर जगह के बदन की मसाफत 300 सालों के बराबर। इतना बड़ा तुम्हारे मुंह के अंदर का एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर, अंदर का मुंह का एक दांत मदीने के पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ ओहद का पहाड़। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते ऐसे जालिमों को, ऐसे बेदीनदारों को, ऐसे नालायकों को अल्लाह ताला इतना भयानक अज़ाब तैयार कर रखा है, 90 पर 9 सांप, 40 बिच्छू उसके इस्तिकबाल के लिए। जामे तिर्मिजी की रिवायत है, किताब सिफतिन नार, जहन्नमियों के अहवाल के बारे में इमाम तिर्मिजी, इमाम अबू ईसा बयान करते हैं हदीस, एक बार जहन्नमी को सांप अगर डसेगा 90 पर 9 बरस तक चीख मारेगा, उसकी चीख नॉन स्टॉप 90 पर 9 बरस निकलेगी। एक बार डसेगा 99 बरस चीखेगा। बिच्छू एक बार डंक मारेगा कई साल चीखेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं इतने पॉइजन नुमा वो सांप बिच्छू, इतने जहरीले सांप बिच्छू, अगर एक फंड इस जमीन पर, इस धरती पर वो सांप अगर मार ले, कयामत की सुबह तक ये जमीन हरियाली उगाना बंद कर दे। इतना भयानक वो सांप वो बिच्छू होंगे। दुनिया के कोई पॉइजन नुमा सांप, बड़े से बड़ा जहरीला सांप, जहन्नम के सांप का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे जहरीले सांप बिच्छू तुम्हारे लिए मुंतखब करेगा जो बेदीन होंगे, जो बदकार होंगे, जो रियाकार होंगे, मुतकब्बिर होंगे। 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालने का वादा कर दिया। जहन्नम से, ऐ जहन्नम कोई आए ना आए, 3 लोगों से मैं तुझे भर दूंगा, 3 किस्म के लोगों से तुझे भर दूंगा। जहन्नम से अल्लाह वादा करे। वो 3 किस्म के लोग कौन होंगे? नंबर 1 मुशरिक, नंबर 1 मुशरिक, अल्लाह के जात में शिर्क करने वाले, मुशरिक से अल्लाह जहन्नम भर देगा। नंबर 2 मुतकब्बिर, हर तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही किब्रुन मिस्काल हब्बतिन मिनल किबर, वो आदमी जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर रहेगा। सुनन नसाई की हदीस। अल्लाह के नबी ये सुनना था, सहाबा की हालत बेहालत हो गई। राई के दाने के बराबर किब्र रखने वाला, तकब्बुर रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता पहनना, ये तकब्बुरी में आता क्या? अल्लाह के नबी बोले अगर अच्छा कपड़ा अच्छा जूता पहन को तुम्हारी नीयत तकब्बुर करने की आ गई तो किब्र में आता। अल्लाह दिया, आप पहन रही, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही, किसी को हकीर नहीं जता रहे, तकब्बुरी दिल में नियत नहीं है तो तकब्बुरी में नहीं आता। राई के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। हर मुशरिक से अल्लाह जहन्नम भर देगा, हर मुतकब्बिर से अल्लाह जहन्नम भर देगा। नंबर 3 हर मुसव्विर से अल्लाह जहन्नम भर देगा। मुशरिक, मुतकब्बिर, मुसव्विर, मुसव्विर का तो तस्वीरां उतारने वाला। आजकल लोगों को एक आदत पड़ गई, मौलाना तुम्हारे साथ एक सेल्फी उतरती, हमें कहीं उतरती भाई, क्या करती उतर को? क्या बड़े पोस्टर छपा को क्या गलिया मोहल्ले में डालती? नहीं मौलाना, फेसबुक पे रखती, स्टेटस पर रखती, जरा व्हाट्सएप की आईडी प्रोफाइल बना लेती। अरे क्या करती जी? बीमारी लग गई हमारे सल्फी भाइयों को सेल्फी उतरने की, सल्फी भाइयों को सेल्फी उतरने की बीमारी लग गई। क्या कहते हो? सेल्फी। मौलाना एक सेल्फी, इधर इधर देखो, इधर देखो मौलाना, उधर नहीं इधर देखो, जरा स्माइल दो, हाँ जरा हाथ डालो मेरे कंधे पर, हाथ डालो, एक एक जस्ट
ہمارے اما، ہمارے بانا، ہمارے ابا ہمیں بڑے فیانا، تمہارے ٹیبل فیانا، سیلنگ فیانا، ذرا ایک اسمیل دیو، کیا کرتی بھئی، کہیں کترتی بھئی۔ اللہ کے نبی بولے ہر تکبر کرنے والے کو اللہ جہنم میں ڈالیں گا، ہر تصویر اتارنے والے کو اللہ جہنم میں ڈالیں گا۔ مجبوری میں کیا کی تصویر اترنا ضروری ہے، آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، تمہارے دیگر ضروریات، گھر کے ڈاکومنٹ چلتا، بغیر کسی وجہ کہیں اترتی، کیا ضرورت اترنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصویر اسے ہاتھ میں دے کر جہنم میں بھیج کر یہ بولیں گا، اے میرے بندے، تصویر بنانا، مجسمہ بنانا، اس میں جان بھرنا، یہ میرا کام تھا، جب تو نے کیا ادھورا کیوں کیا؟ پورا کر کے دکھا، یہ لے تیری تصویر، جب تک اس میں جان نہیں بھریں گا تجھے جہنم سے میں باہر نہیں نکالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصویر اس کے ہاتھ میں دیکھ جہنم میں ڈھکال۔ کیا ہمارے اندر اتنی جسارت ہے کہ ہم اس تصویر میں جان بھر سکے؟ ہے ہمارے اندر؟ نہیں۔ اچھا، اب علماء کے اندر اختلاف ہے، یہ موبائل سے فوٹو اترنا اس تصویر میں شامل نہیں۔ علماء کے اندر اختلاف ہے، وہ تصویر کا تو مورتیاں چھڑانا اور مورتیاں، پینٹنگ کے مورتیاں بنانا وہ تصویر میں شامل ہے، یہ موبائل سے اتارنے والے تصویر ان تصویروں میں شامل نہیں۔ یہ علماء میں اختلاف، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ میں نہیں جانتا یہ تصویر مکمل طور پر حرام ہے یا حلال ہے، میرے علم میں بھی نہیں، حالانکہ میں اتریا ہوں، کئی ایک کے ساتھ اتریا ہوں، اللہ معاف کرے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایسا نہ کریں، اس سے کیا بھی نہیں ملتا۔ اچھا، شاید میرے خطاب کا وقت ختم ہو گیا، 8:15 بجے عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سامعین سننے والے بھائیوں بہنوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور للہیت اللہ نصیب فرمائے۔